Hello dear students. In this video we are discuss about the chemical used as a cleansing agents. The most widely used cleansing agents are soaps and detergents. In this section we will learn about the detergents. Two types of detergents are used as a cleansing agents. There are soaps and synthetic detergents. How soaps are differ from the synthetic detergents? About that we already learned in a chapter 5 surface chemistry. Here we are going through the different aspects of the soaps and detergents. This improve the cleaning property of water. This help for the removal of fats which bind with the other material to the fabric or skin. तो जितने भी हमारे जो क्लोथ्स है, हमारे फेस है, स्किन है, बॉडी है, उसको क्लीन करने के लिए आइदर वी आर यूटिलाइजेस द सोप्स और डिटर्जेंट्स. So first, soaps. Soap is produced by the saponification process. Soap is produced by the saponification process. Here, glyceryl ester of stearic acid, here you can see that CH2OH, glycerol, CH2CH2OH. This is a glycerol part is there. It is combined with the stearic acid, so it's become a glyceryl ester of stearic acid on treatment with alkali 3 mole of NOH on heating get converted into sodium stearate plus glycerol. The whatever the sodium stearate form over here is act as a soap. Yes, so ester of glyceryl ester of fatty acids on treatment or heating with alkali like NaOH get converted into sodium stearate plus glycerol. Soaps that produced by this method is called as saponification process. This process is known as saponification process. Soaps are the detergent used since a long times. Soap used for the cleansing purpose are the sodium or potassium salt of long chain fatty acids. Example stearic acid, oleic acid, palmitic acid, etc. Soaps containing sodium salts are formed by heating the fat, that is glyceryl ester of fatty acid, with aqueous sodium hydroxide solution. This reaction is called as saponification reaction. Ester of fatty acid treated with alkali on heating gives sodium stearate plus glycerol. This sodium stearate whatever is formed is called as soap, and the process is called as saponification. अब जब भी बात होती है सोप की तो फिर सोप में अलग अलग वेराइटीज़ है. Now, in this reaction, ester of fatty acid is hydrolyzed and soap is obtained remain in a colloidal form. It is precipitated from the solution by adding sodium chloride. नॉर्मली जिस तरीके से सोप फॉर्म होगा उसको वापस सेपरेट करने के लिए, प्रिसिपिटेट आउट करने के लिए व्हाट इज एडेड? सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू प्रिसिपिटेट द सोप. The solution left after removing the soap contain the glycerol which can be recovered by fractional distillation. Only sodium and potassium soaps are soluble in water. ध्यान से सुनिएगा सब बच्चों. Soap of sodium and potassium are soluble in water and used for the cleansing purpose. Generally, potassium salts are soaked to the skin, then sodium soaps. This can be prepared by using the potassium hydroxide solution in place of sodium hydroxide. Potassium hydroxide can be used instead of sodium hydroxide. If potassium hydroxide is used, then soap whatever obtained is soft in nature. Soft soap जो इसको कहते हैं कि नरम वाले, बाबा स्किन को सॉफ्ट रहता है, लेदर इसके एकदम सॉफ्टी टच वाले रहते हैं एकदम बाबा, जैसे कि पियर्स है, डव्स है, उन सब के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज. नॉर्मली हमारे घर पे जितने भी बाथिंग सोप होंगे मोस्ट ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट सोप. सही है. जबकि आपके जो बर्तन धोने के डिटर्जेंट्स रहते हैं उसके अंदर हार्डनेस वैल्यू ज़्यादा होता है कपड़े धोने में. तो आप देखना कपड़े धोने के साबु या तो बर्तन धोने का साबु अगर आप रब करोगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, बिकॉज दे आर कंसिडर एज ए हार्ड सॉप. अगर सॉफ्ट सॉप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम सॉल्ट यूज़ करने पड़ेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स. बेसिकली ऑल द सोप्स आर मेड अप बाय द बॉइलिंग द फैट्स और ऑयल्स विद द सुटेबल अल्कली. वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल. तो सर कैसे कैसे अलग अलग टाइप के सोप है? देखो आप लोग को मालूम है
बहुत सारे सोप आपने यूज़ भी किए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन टॉयलेट सोप। नॉर्मली टॉयलेट सोप आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड केयर इज टेकन टू रिमूव द एक्सेस ऑफ अल्कली। जो हमने NaOH डाला था सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में, इफ इट इज़ एडेड इन एक्सेस अमाउंट तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसे टाइप के सोप जो हमारे डेली बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज टॉयलेट सोप्स। दे आर कॉल्ड एज टॉयलेट सोप एंड दे कंसिस्ट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ अल्कली, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। वेरियस कलरिंग एजेंट्स एंड परफ्यूम्स आर एडेड टू गिव्स देम ए डिफरेंट कलर। तो आपने देखे होंगे कि कई बार आपको कहता है रोज़ सोप है, या तो जैस्मीन है, बाबर लोटस है, कई कहते हैं कि हमारे सोप में नींबू की खुशबू आती है, बाबर उसके एक जैसा कलर बता देते हैं। सो कलर्स एंड परफ्यूम्स आर एडेड इन द सोप्स टू मेक देम अट्रैक्टिव। टॉयलेटरी सोप्स यानी द सोप विच इज़ यूज फॉर द बाथिंग पर्पस। The second category of soaps that float in a water are made by beating the tiny air bubbles before their hardening. Yes, नॉर्मली छोटे बच्चों के जो सोप आते हैं उनको नॉर्मली पानी के साथ बहुत खेलना पसंद होता है, तो ऐसे सोप बनाए जाते हैं कि विच कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अब ऐसा करना है तो क्या करना होगा, इट कैन बी मेड बाय बीटिंग द टाइनी एयर बबल्स बिफोर देयर गार्डनिंग। जब आप एस्टरिफिकेशन सपोरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे थे तब एयर बबल्स बनते हैं, उसको हम क्या करेंगे, वी कैन बीट डैम बिफोर इट बिकम हार्ड मास। वेर एज थर्ड कैटेगरी ऑफ सोप इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट सोप। पियर्स आपने देखा होगा, पियर इज अ ट्रांसपेरेंट सोप। हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेड इट डिजोल्व इन अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल के अंदर डिजोल्व करना है एंड देन इवापोरेटिंग द एक्सेस ऑफ इथेनॉल। तो आपका जो अल्कोहल ऐसे सॉल्वेंट है उसके अंदर हम बनाते हैं, एंड वी कैन डिजोल्व इवापोरेट दैट एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, सो सोप ऑब्टेन ड्यू टू दैट बिकम ए ट्रांसपेरेंट इन नेचर। आप लोग ने सबने पियर्स सोप देखा होगा। पियर्स सोप इज अ ट्रांसपेरेंट सोप एंड इट इज मेड बाय यूजिंग इथेनॉल्स। Medicated soaps like Lifebuoy, Dettol, Savlon, etc. Here some medicinal values are added to the soaps. Deodorants are added in that. Normally deodorants are added. Bithionol is the substance which is added in the medicated soap. Yes, कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है, बायथायोनल। बायथायोनल बराबर। चलिए, सेविंग सोप्स, आपको मालूम है कि जो सेविंग क्रीम्स रहती है, सेविंग सोप्स रहते हैं, दे हैव ए लेदर, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉर्म होता है एंड स्टेबल लेदर। सेविंग सोप्स कंटेन द ग्लिसरॉल दैट प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। विच वन इज एडेड टू एन सेविंग सोप, क्योंकि सेविंग सोप आपकी स्किन पे रखा रहना चाहिए, सो ग्लिसरॉल इज एडेड इन दैट टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। द गम कॉल रोजिन इज एडेड वाइल मेकिंग दैम। कौन सा, रोजिन। क्यों लिया जाता है, सोडियम रोजिनेट्स विच लेदर्स वेल बिकॉज इट इम्प्रूव द लेदर प्रॉपर्टी ऑफ द सोप। ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए ग्लिसरॉल डाला जाता है, और लेदर प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, उसके फॉर्म जनरेशन इंप्रूव करने के लिए सोडियम रोजिनेट। लॉन्ड्री सोप्स कंटेन द फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। ऑल दिस आर कॉल्ड एज फिलर्स विच इज प्रेजेंट इन अ लॉन्ड्री सोप्स. Soap chips are made by running the thin sheet of melted soap onto the cool cylinder and scraping of the soaps in a small broken pieces. आप लोग कहते हैं पेपर सोप कहते हैं, नथिंग बट से पेपर सोप क्या करते हैं हम, जो हमारा सॉल्यूशन है सोडियम स्टीरेट का बराबर, उसको थिन शीट इज मेडेड एंड देन इट इज स्क्रैप, तो उसकी थिन शीट बना के उसको स्क्रैप करके बनाए जाते हैं. वेयर सोप ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द सोप सॉल्यूशन बराबर मैनिकुलर सोप बबल्स. Soap powders and soaring soaps can contain some soap scoring agents, abrasives such as powdered pumice or finely divided sands, and builders like sodium carbonates. And which one is act as a builders? Sodium carbonate and trisodium phosphate. Builder makes the soap act more rapidly. Roughness provide करता है. आप लोग ने बहुत सारे स्क्रब देखे होंगे, जो आप स्क्रब फेस वॉश के अंदर यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो स्क्रब के फॉर्म में डाले जाते हैं, सो डैट अपने को एब्रेसिव एक्शन उसका नॉर्मली ईजी हो जाता है. वी कैन रब दैट सोप विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स ऑन आवर फेस, सो इट कैन हैज़ अ वेरी गुड क्लीनिंग प्रॉपरली. द क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप कैन बी डिस्कस इन अ चैप्टर 5, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है.
Next important parameter related to soap is why does soap does not work in a hard water. We all know that in the standard 11 we learned that hard water is nothing but it consists of soluble salt of sodium and magnesium in the form of carbonate and bicarbonate. Because hard water consists of calcium and magnesium salts, these calcium and magnesium ions replace the sodium ion present in a soap. These ions form insoluble calcium and magnesium soaps respectively when sodium and potassium soaps are dissolved in a हार्ड वाटर. तो सोप जब भी हार्ड वाटर में जाएगा तो कैल्शियम है तो 2 मोल ऑफ Na इज रिप्लेस बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 NaCl बनेगा और इनसॉल्युबल सोप बन जाता है विच इज़ रिस्पॉन्स. अब अगर वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट होते हैं तो वो सॉल्युबल होता है, बट जबकि कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीरेट कैसे हो जाते हैं, इनसॉल्युबल. एंड इफ दे बिकम इनसॉल्युबल वी कैन नॉट बी, इट डज नॉट शो इट्स क्लींसिंग प्रॉपर्टी. These insoluble salts separate the scum, separate out as a scum in a water and then useless as a cleansing agent. In fact, these are the hindrance to the good washing and because of the precipitate adhere on the fibers of the cloth as gummy mass. इसलिए ज़रूरी है कि हार्ड वाटर है तो आप सोप का यूज़ ना करें. हेयर वॉश विद द हार्ड वाटर आर लुक डल. अगर आपके हेयर है हार्ड वाटर के यूज़ करोगे बराबर डल बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकी प्रिसिपिटेट्स, कम जो प्रोड्यूस होता है वो. डाई डज नॉट एब्जॉर्ब इवनली ऑन द क्लोथ वॉश विद द सोप यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ दिस गमी मास. और वो जो गमी मास होता है इट इज़ नथिंग बट द इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट और इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. This is mainly about the soaps. In the next video, we will discuss about the last portion of the topic, that is about detergents.